وزیراعظم شہباز شریف آذربائیجان کے شہر لاچین پہنچ گئے۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے وزیراعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ پاکستانی سفیر قاسم محی الدین اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف ترکیہ آذربائیجان سہ فریقی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات بھی کریں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹرز تہران کا دورہ۔ عاصم منیر کی ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف سے ملاقات۔ دو طرفہ دفاعی تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ علاقائی سلامتی کے منظرنامے سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں بارڈر سیکیورٹی کو مؤثر بنانے، عسکری تعاون بڑھانے اور سرحدی علاقوں کو تجارت اور معیشت کے مراکز میں تبدیل کرنے جیسے اہم موضوعات زیر غور آئے۔ طوفانی ہواؤں نے شہر اقتدار کا موسم پھر بدل دیا۔ گہرے سیاہ بادلوں نے دن میں رات کے نظارے دکھا دیے۔ کہیں کہیں موسلادھار بارش کے ساتھ ژالہ باری بھی ہوئی۔ تیز آندھی سے نظام زندگی متاثر، کئی مقامات پر درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ اسلام آباد، پشاور، بالاکوٹ، سوابی میں بارش کا پانی جمع ہو گیا۔ اندرون شہر حیات آباد، رنگ روڈ، صدر سمیت دیگر علاقوں میں بارش سے پانی گھروں اور دکانوں میں داخل۔ ضلع خیبر اور گردرنواح میں تیز ہوا کے ساتھ بارش اور ہلکی ژالہ باری۔ محمد اور گردرنواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش سے ندی نالوں میں طغیانی۔ بلو ایریا میں تیز آندھی سے درخت گر گیا، گاڑی کو نقصان پہنچا۔ مظفر آباد میں بادل پھٹ گیا، مسجد شہید نے کئی مکانات تباہ۔ نواحی علاقے بلگراں کے مقام پر پیش آنے والے واقعے میں ایک خاتون بھی جاں بحق ہو گئیں، کئی افراد لاپتہ، امدادی کارروائیاں جاری۔ لینڈ سلائیڈنگ سے بھی بڑے پیمانے پر نقصان۔ لیسواہ اور بلگراں نالے میں شدید طغیانی، کئی رہائشی مکان طغیانی کی زد میں آ گئے۔ باڑیاں سے میرپورہ کے درمیان شاہراہ نیلم ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ کراچی میں آج بھی سورج آگ برساتا رہا، شدید گرمی نے شہریوں کا برا حال کر دیا۔ پارہ 35 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، شدت 40 ڈگری محسوس کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ظاہر کر دیا۔ گرمی کی لہر مئی کے اختتام تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ رواں ماہ بارش کا کوئی امکان نہیں، شہریوں کو غیر ضروری طور پر دن کے اوقات میں دھوپ میں نکلنے سے گریز کی ہدایت۔ پاکستان میں ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید الاضحیٰ 7 جون ہفتے کو ہوگی۔ چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس۔ کراچی، لاہور اور پشاور سمیت کہیں سے بھی چاند دکھائی دینے کی شہادت نہیں ملی۔ سعودی عرب میں عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ گیا۔ عید قرباں کی آمد، شہر شہر خوبصورت اور تگڑے جانوروں کی دھوم۔ پشاور کی مویشی منڈی میں جوجو راجو کی انٹری۔ کوئٹہ کی منڈی میں بھاگ ناڑی کے بیل، ساہیوال، کاموری اور گلابی بکروں کے چرچے۔ خوبصورت اور تگڑے جانور شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ لاہور میں ملک کی سب سے بڑی ماڈل کیٹل مارکیٹ کا افتتاح۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ماڈل کیٹل مارکیٹ کا دورہ، دستیاب سہولتوں کا جائزہ لیا۔ مارکیٹ میں 25,000 بڑے اور 1.5 لاکھ چھوٹے جانوروں کی گنجائش۔ بیوپاریوں کے لیے رہائشی کمرے بھی بنائے گئے۔ مسجد، واش روم، ویٹرنری کلینک، ٹک شاپ، بینک اور ATM بھی موجود۔ افواج پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنی قیادت سے ملک کی دفاع کو نئی سمت دی۔ ایکس سروس مین کی پریس کانفرنس، کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ترقی دشمن کے لیے پیغام ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کشیدگی کے دوران دوست ممالک کی حمایت پر شکر گزار ہیں۔ مودی کی پاکستانی نوجوانوں کو روٹی یا گولی کی بڑک۔ گجرات میں حالیہ تقریر اخلاقی اقدار اور جنوبی ایشیا کے امن کے لیے ایک اور سنگین حملہ قرار۔ پاکستان کا شدید رد عمل، بھارتی وزیر اعظم کی تقریر نفرت انگیز اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا، پاکستان امن کا حامی ہے مگر اپنی خود مختاری اور قومی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ عالمی برادری مودی کے نفرت انگیز اور پرتشدد بیانات کا نوٹس لے۔ مودی سرکار کی انتخابی سازشیں ایک بار پھر بے نقاب۔ سابق بھارتی وزیر خارجہ یشونت سنہا کے تہلکہ خیز انکشافات، کہا کہ پہلگام اور پلوامہ جیسے حملے الیکشن جیتنے کا سیاسی حربہ تھے۔ پلوامہ، اڑی اور اب پہلگام جیسے واقعات ہمیشہ انتخابات سے پہلے ہی کیوں ہوتے ہیں؟ کیا دہشت گردی کا استعمال ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہو رہا ہے؟ سیز فائر کے باوجود مودی حکومت پاکستان سے مذاکرات میں سنجیدہ نہیں۔ نریندر مودی نے بھارت کو دنیا میں تنہا کر دیا۔ بھارت کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے انتہا پسند مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا کہ مودی حکومت کی خارجہ پالیسی ناکام ہو چکی۔
सोशल मीडिया साइट एक्स पर वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से सवालात पूछते हुए राहुल गांधी ने लिखा, पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क ने साथ क्यों नहीं दिया? क्या वज़ीर ख़ारजा बताएंगे कि अमरीकी सदर से सालिसी करने के लिए किसने कहा था? मोदी के भारत में मुसलमान होना सबसे बड़ा जुर्म बन चुका है। उत्तर प्रदेश के ज़िला अलीगढ़ में गऊ रक्षकों ने 4 मुसलमानों को बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाया। हमलावरों ने मुतासरीन को गाड़ी से निकालकर डंडों और सरियों से मारा, फिर उनकी गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस मौके पर मौजूद थी मगर खामोश तमाशाई बनी रही। मार्का हक में पाकिस्तान की भरपूर कामयाबी। पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस बुनियादों पर क्या कामयाबी समेटी, हक़ाइक़ सामने आ गए। भारत में मौजूद फील्ड इंटेलिजेंस ने भरपूर अहम राज शेयर किए। भारतीय फौजी ऑफिसर ने 50,000 रुपये के बदले राफेल तैयारे के मलबे की फुटेज पाकिस्तानी खुफिया इदारों को फ़रोख्त की। पाकिस्तान ने 7 मई को भारत के 3 राफेल समेत 6 तैयारे मार गिराए थे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। सूबा बचाओ तहरीक के सिलसिले में रैली पर तशद्दुद से मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पुरअमन एहतजाज से घबरा कर केपी हुकूमत ने आंसू गैस की शेलिंग की। सूबाई हुकूमत को अवाम से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। पीपल्स पार्टी कारकुनान ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की। शेलिंग SOPs के तहत की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए। IMF ने हमारी तारीफ की। हमारे पास 900 अरब रुपए सरप्लस है। खैबर पख्तूनख्वा ने कोई कर्ज नहीं लिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। बानी PTI ने हमेशा इंसाफ के लिए जद्दोजहद की। बानी PTI पर झूठे केसेस बनाए गए। हम ये समझते हैं कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। अदालतों का काम है, अदालत ने हलफ उठाया होता है कि न सिर्फ ये कि मैं इंसाफ करूंगा, भाई इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। इंसाफ जब हो तो बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी फेवर के वो इंसाफ। हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं उसके? वो तो कह रहे रूल ऑफ लॉ करो, वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, वो जमहूरियत के लिए खड़ा है। आप बताएं वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसको क्या करेंगे? बानी PTI से 2 बहनों की मुलाकात। अलीमा खान को आज भी इजाज़त ना मिली। कहती हैं, भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है, बताएं बानी PTI क्या चीज़ छोड़ दे कि आप रिहा कर देंगे? पीछे ना बैठें, सामने आकर बात करें, हमारे साथ बैठ जाएं। छुप छुप कर बात नहीं होगी। उन्होंने बताया कि बानी PTI ने एहतजाजी तहरीक की तैयारी करने की हिदायत की है। उनकी सब पर नज़र है। तहरीक इंसाफ एक नज़रिए का नाम है। विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस सीटों से मुताल्लिक़ नज़रसानी अपीलों पर समाअत। मुअज़्ज़िज़ जजेस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इंतखाबी निशान का फैसला किया था। तहरीक इंसाफ बरकरार थी। इसने खुद ही समझ लिया था कि वो सियासी जमात नहीं रही। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात तस्लीम किया। एक ऑप्शन था कि नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी जाएँ। अगर ये नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को दे दी जाएँ तो हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। जज ट्रांसफ़र करके जुडिशल कमीशन का इख्तियार गैर मौसर किया जा सकता है। उसूल क्या है, कैसे तय किया गया? सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स में कहा, मुस्तकिल जजेस की तैनाती तो जुडिशल कमीशन करता है। जजेस ट्रांसफ़र वहाँ हो सकते हैं जहाँ फ़र्ज़ करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टैक्स केसेस सुनने के लिए माहिर जज चाहिए तो इसके लिए आर्जी जज लाया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान के दलाइल मुकम्मल हो गए। दरख्वास्त गुजार के वकला आइंदा समाअत पर जवाब दायर करेंगे। केस की समाअत 29 मई तक मुलतवी। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने कम उम्री की शादी के इम्तना का बिल मुस्तरद कर दिया। काउंसिल के एलामे के मुताबिक 18 साल से कम उम्र की शादी को ज़्यादती करार देकर सज़ाएँ मुकर्रर करने समेत दीगर शिक़ें भी गैर इस्लामी करार दे दी गईं। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने निकाह से पहले थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी करार देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। नौजवान मुल्क की दिफा और मईशत के लिए किरदार अदा करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि हायर एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। दोस्त ममालिक ने टेक्नोलॉजी से मुतालिक पाकिस्तान की मदद की। सिंध में मेलों की सकाफत को उजागर किया जाता है। बाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। मशहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मोहसिन नकवी की हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाज़री, नवाफिल अदा किए। अमन सलामती, तरक्की और खुशहाली और ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए दुआ। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतज़ामात पर ईरानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सरबराही खुसूसी इजलास।
ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का उसूली फैसला। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार करार, मुकदमा दर्ज होगा। वन व्हीलिंग या खतरनाक तर्ज ड्राइविंग पर भी मुकदमा होगा। ट्रैफिक चालान के साथ वीडियो और तस्वीरी सबूत मुंसलिक करने की हिदायत। दौरान ड्राइविंग मोबाइल के इस्तेमाल पर भारी जुर्माना आयद करने पर इत्तिफाक। मरीम नवाज ने कहा कि ट्रैफिक हादसात को वकूअ पजीर होने से पहले मौसर इक़दामात ही कामयाबी है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मुस्तकिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ्त चाहती है। एशियाई तरक्याती बैंक की मुआवनत से हम अपने मंसूबों की रफ्तार में तेज़ी ला सकते हैं। पंजाब हुकूमत का यौम तकबीर पर स्कूल्स खुले रखने का फैसला। 28 मई को पंजाब के तमाम स्कूल्स खुले रहेंगे। यौम तकबीर की अहमियत पर तकरीरी मुकाबले, आर्ट्स और मिली नगमों के मुकाबलों की हिदायत। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने तमाम ज़िले एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मरासला अरसाल कर दिया। मॉर्निंग असम्बली में स्पेशल प्रोग्राम्स, मिली नगमे, पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। उस्दार में स्कूल के बच्चों की बस पर होने वाला हमला खुदकुश था। सीडी की तहकीकात में इंकशाफ। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी बस से टकराई, जिससे बस में आग लग गई। हमलावर के जिस्मानी आज़ा फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए। हमले में 8 तालिब इल्म शहीद और 40 से ज़ायद जख्मी हुए थे। टावर में थाना दाऊदज़ई की हुदूद में घर के अंदर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। मुलजिम ने बेटे के हमरा घर के अंदर फायरिंग करके अपनी बीवी, भाई और बहन को कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह किचन का तनाज़ा बना था। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम राज वली और उसके बेटे मूसा के खिलाफ तहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज। बांग्लादेशी टीम पाकिस्तान में मेहमान। कौमी क्रिकेट टीम का अगला इम्तिहान। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 कल होगा। खिलाड़ियों का कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में सेशन। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। नए हेड कोच माइक हैसन ने भी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के हेड कोच फिल सिमंस कहते हैं, पाकिस्तान को आसान हरीफ नहीं समझेंगे। पाकिस्तानियों ने गुज़श्ता कुछ अरसे से अच्छा नहीं खेला, लेकिन वो ख़तरनाक टीम है। बांग्लादेशी कप्तान पाकिस्तान को शिकस्त देने के लिए पुरुमीद। लिटन दास ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान बड़ी मुतवाज़िन टीम है। हमें यकीन है कि हम अगर अच्छी क्रिकेट खेलते हैं तो किसी को भी हरा सकते हैं। कौमी कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कि इंटरनेशनल सीरीज़ में कोई भी सीरीज़ आसान नहीं होती। बांग्लादेश की टीम भी बेहतरीन टीम है, इनको आसान हरीफ नहीं समझेंगे।